تصور کریں کہ ایک آم کا باغ ہے، بالکل ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، درختوں پر پتے چمک رہے ہیں اور بظاہر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن اس سرسبز خول کے اندر نا ایک خاموش دشمن پرورش پا رہا ہے۔ بالکل، ایک ایسا بایولوجیکل ہیکر جو آپ کی 95% پیداوار اور کروڑوں روپے کی ایکسپورٹ کو تباہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی علمی جائزے یعنی ڈیپ ڈائیو میں ہم آم کے اسی پراسرار گچھے دار مرض پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ خطرہ پودے کے اندرونی نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ سیشن JQ گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد باغبانی سے وابستہ افراد کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنا ہے۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایریڈیکیٹنگ مینگو مالفارمیشن فار ایکسپورٹ، اور اس کا سب ٹائٹل ہے ہارٹیکلچر ایکسلنس سیریز۔ جی صحیح، اور یہیں پر میں اتنت پیشے ورانہ احترام کے ساتھ اس انتہائی اہم ریسرچ کے مرکزی ماہر سینئر سوئل سائنٹسٹ جناب محمد جاوید قمر کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ بالکل، اور ان کی اس تحقیق کا مطلب اس پورے سیشن کا بنیادی تعلیمی مقصد یہ ہے کہ جو افراد اس وقت اپنے موبائل فونز پر ہمیں سن رہے ہیں نا، انہیں عالمی فائٹوسینٹری پروٹوکولز یعنی پودوں کی صحت کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہائی ویلیو مارکیٹس کے لیے تیار کیا جا سکے۔ صحیح بات ہے، تاکہ جو پیداوار ہمیں حاصل ہو وہ ہر بین الاقوامی معیار پر پوری اتر سکے، کیونکہ اس ریسرچ کے شروع میں جو تصویر دکھائی گئی ہے نا، وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک طرف چمکدار آم ہے اور دوسری طرف مکمل طور پر الجھی ہوئی سوکھی شاخوں کا ایک بھیانک گچھا۔ ہاں، وہ تصویر تو خود ہی بتا رہی ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے دا ہائی سٹیکس پرابلم، یعنی ایک سنگین معاشی خطرہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اس تصویر میں لگ رہا ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ اس ظاہری شکل سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام موسمی بیماری نہیں ہے، یہ ایک سائلنٹ جیل ڈسٹرائر ہے، مطلب ایک خاموش قاتل ہے۔ اچھا، خاموش قاتل سے آپ کی مراد ہے کہ یہ اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہے؟ جی بالکل، جب تک یہ باغ میں واضح نظر آتی ہے نا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بیماری پودے کو بانجھ کر دیتی ہے۔ جو پھول نکلتے ہیں ان میں پولن یا جرگ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اوہ، مطلب پھل بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ کہ ان پھولوں کی شکل بالکل جادوگرنی کی جھاڑو یعنی وچز بروم جیسی ہو جاتی ہے۔ وچز بروم، وہ جو پرانی کہانیوں میں جادوگرنیوں کا الجھا ہوا جھاڑو ہوتا تھا۔ ہاں بالکل وہی، شاخیں اتنی بے ہنگم طریقے سے الجھ کر ایک گچھا بن جاتی ہیں کہ وہ بالکل ویسا ہی دکھتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے تشویشناک نقطہ یہ ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ اعلیٰ پیداوار کی مکمل تباہی ہے۔ نقصان کی شرح حیران کن طور پر 95% تک جا سکتی ہے۔ 95%، یہ تو کسی بھی معیشت کی جڑیں ہلا دے گا۔ لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت پھل بچ بھی جائے تو کیا اس سے منافع نہیں کمایا جا سکتا؟ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے دی پروفٹ گیپ، یعنی منافع کا بھاری نقصان۔ کیا ہم اس بچے ہوئے پھل سے کام نہیں چلا سکتے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم ہائی ویلیو مارکیٹس کی بات کرتے ہیں نا، جیسے امریکہ، یورپ اور جاپان، تو وہاں کے معیارات بہت مختلف ہیں۔ وہ تو کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہوں گے۔ بالکل، اور دوسرا نقطہ یہی ہے کہ ان مارکیٹس میں اس بیماری کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، یعنی اگر ایکسپورٹ کی گئی پوری کھیپ میں ایک بھی گچھا یا بیماری کا نشان مل گیا تو پوری کی پوری کھیپ کینسل۔ ایک بھی نشان پر؟ یہ تو بہت سخت ہے۔ جی، اور یہی ہمارا تیسرا نقطہ ہے۔ ان کے فائٹوسینٹری قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی بھی بیرونی جراثیم کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے، جس کا چوتھا اور آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایکسپورٹ آرڈرز کی بھاری منسوخی ہوتی ہے اور ہمیں اربوں کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک طرح سے تجارتی موت ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ہمارا ہی مقامی مسئلہ ہے؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے گلوبل پرسپیکٹو، یعنی عالمی تناظر۔ کیا دنیا بھر کے کاشتکار اس سے گزر رہے ہیں؟ جی، پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی ایک خطے کا نہیں بلکہ ایک سنگین عالمی بحران ہے۔ اچھا، مطلب سبھی اس کی زد میں ہیں۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب اتنے سخت عالمی قوانین کا نفاذ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ملک رسک نہیں لیتا۔ اور اگر ہم تیسرے نقطے کی طرف آئیں تو میکسیکو، بھارت اور برازیل جیسے ممالک جو آم کی پیداوار کے بڑے نام ہیں نا، وہ بھی اس سے شدید متاثر ہیں۔ ارے واہ، میکسیکو اور بھارت جیسے بڑے ایکسپورٹرز بھی؟ ہاں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہر سال عالمی سطح پر اربوں ڈالرز مالیت کی ایکسپورٹ ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری سپلائی چین ہل کر رہ گئی ہے۔ اگر دنیا کے بڑے ممالک کا یہ حال ہے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے دا پاکستان کانٹیکسٹ، یعنی پاکستان کی صورتحال۔ ہمارے کون سے علاقے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں؟ پاکستان کی صورتحال واقعی تشویشناک ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے باغات جو ہماری پیداوار کا دل ہیں، وہ اس کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ اور یہی تو ہماری سب سے بہترین اقسام ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہی دوسرا نقطہ ہے، ہماری وہ قیمتی اقسام جن کی دنیا میں مانگ ہے، جیسے چونسا، سندری اور انور رٹول، یہ اس بیماری کا شدید ترین شکار ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارے سب سے پریمیم آم ہیں۔ علاقے کون سے ہیں خاص طور پر؟ تیسرا نقطہ اسی حوالے سے ہے،
बहावलपुर, मुल्तान और मीरपुर खास के इलाके इसकी जद में सबसे ज्यादा हैं। यहीं से बेहतरीन फल एक्सपोर्ट होता है। और चौथा नुक्ता यह है कि इस वजह से हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट को लाहक खतरात इतने संगीन हो चुके हैं कि हमारा पूरा ज़र मुबादला का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। ये सूरत हाल तो आंखें खोल देने वाली है, लेकिन आखिर इस पोशीदा दुश्मन की हकीकत क्या है? पौधे के अंदर चल क्या रहा है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द फंगल कल्प्रिट, यानी बीमारी की असल वजह। तो बताइए, ये दुश्मन है कौन? देखें, इसका पहला नुक्ता यह है कि ये कोई मौसमी खराबी नहीं, बल्कि इसकी बुनियादी वजह एक बायोलॉजिकल एजेंट है। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब कोई जिंदा चीज? जी हाँ। और दूसरा नुक्ता यह है कि ये पौधे के अंदर तक सरायत कर जाता है, जिसे हम साइंसी जबान में सिस्टमैटिक कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी ये पौधे की रगों में बैठ जाता है। जैसे इंसान के खून में कोई इन्फेक्शन फैल जाए। बिल्कुल बेहतरीन मिसाल दी आपने। तीसरा नुक्ता इसका नाम है। इस मुजरिम या इस फफूंदी का साइंसी नाम फ्यूजेरियम मैंजिफेरी है। और चौथा नुक्ता यह है कि ये फफूंदी शाखों और फूलों को मुकम्मल तौर पर तबाह करके उन्हें गुच्छों में बदल देती है। अगर मैं इसे एक और मिसाल से समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए। मशीन वही रहती है, लेकिन अंदर का निजाम बिगड़ जाता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हार्मोनल केओस, यानी हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन। क्या वाकई पौधे का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है? आपकी मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। पहला नुक्ता यही है कि ये फफूंदी कुदरती हार्मोन्स में शदीद बिगाड़ पैदा कर देती है, बिल्कुल एक हैकर की तरह। अच्छा, तो ये हैकिंग होती कैसे है? इसके लिए दूसरा नुक्ता देखें। पौधे में एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, जो खुलिये बनाता है। ये फंगस इस साइटोकाइनिन की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी खुलिये तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। जी, लेकिन तीसरा नुक्ता यह है कि एक और हार्मोन ऑक्सिन, जिसने इन खलियों को लंबा करना होता है, उसकी शदीद कमी हो जाती है। ओ, खलिये बन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें लंबा होने का रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और इसी का चौथा और हतमी नतीजा ये निकलता है कि खलियों की बेहंगम और गुंजान अफजाइश होती है, और वो एक ही जगह सुकड़कर वो गुच्छेदार मर्ज बन जाते हैं। यानी सारा मसला इस हार्मोनल बिगाड़ का है। लेकिन क्या इसमें मौसम का भी कोई हाथ है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, यानी मौसमियाती असरात। मौसम तो इसमें एक्सेलरेटर का काम करता है। पहला नुक्ता ये है कि सर्दियों के मौसम का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सर्दियाँ ही क्यों? क्योंकि दूसरा नुक्ता ये है कि ये वो वक्त होता है जब पौधे में फूल बनने के अमल का आगाज हो रहा होता है, जिसे हम फ्लोरल डिफरेंशिएशन स्टेज कहते हैं। यानी पौधा फैसला कर रहा होता है कि पत्ते निकालने हैं या फूल। बिल्कुल दुरुस्त। और तीसरा नुक्ता यह है कि इस वक्त दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है। इन सख्त हालात में पौधा दबाव का शिकार होता है, जिससे चौथा नुक्ता जन्म लेता है, यानी इन हालात में फफूंदी के हमले और हार्मोनल बिगाड़ में शिद्दत आ जाती है। सर्दी इस फंगस को पूरी आजादी दे देती है। एक मिनट रुकिए, हमने बागबानी में हमेशा यही सुना है ना कि बीमारी आए तो बस कोई अच्छा सा स्प्रे कर दो। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है टेक्निकल इंटरवेंशन 1, यानी पहला साइंसी कदम। क्या हम स्प्रे करके जान नहीं छुड़ा सकते? ये वो गलत फहमी है जिसने बागात तबाह किए हैं। पहला नुक्ता यही है कि सिर्फ कीमियाई स्प्रे बिल्कुल बेअसर है। आप जितना मर्जी महंगा स्प्रे कर लें, वाकई मतलब स्प्रे का कोई फायदा ही नहीं? कोई फायदा नहीं। और दूसरा नुक्ता यह है कि इस बीमारी को जिस्मानी तौर पर निकालना, यानी फिजिकल रिमूवल, इंतहाई जरूरी है। लेकिन स्प्रे असर क्यों नहीं करता? इसका जवाब तीसरा नुक्ता है, क्योंकि ये एक अंदरूनी यानी सिस्टमिक बीमारी है। स्प्रे सिर्फ बाहर पत्तों पर रहता है, रगों तक नहीं जाता। इसलिए चौथा नुक्ता, सख्त कटाई और छंगाई, जिसे सैनिटरी प्रूनिंग कहते हैं, वो बिल्कुल लाजमी है। इसके बगैर कोई इलाज मुमकिन नहीं। बात तो समझ आ गई कि काटना पड़ेगा, लेकिन सेहतमंद शाख को काटना बागबान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कटाई का असूल क्या है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द प्रूनिंग रूल, यानी कटाई और छंगाई का असूल। मोबाइल पर सुनने वालों के लिए इसकी पैमाइश जरा तफसील से बताएं। ये असूल बहुत सख्ती से अपनाना होगा। पहला नुक्ता, सबसे पहले गुच्छेदार शाखों की वाज़ेह निशानदेही करें। चले, निशानदेही तो हो गई। फिर दूसरा नुक्ता, जो जरा तकलीफ दे है, बज़ाहिर सेहतमंद शाख के हिस्से को भी काटना होगा, सिर्फ गुच्छा नहीं काटना। सेहतमंद हिस्से को भी? हाँ। कितना काटना होगा? तीसरा और सबसे तकनीकी नुक्ता यही है, बीमारी से कम 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे से कटाई करनी है। ये 15 से 20 सेंटीमीटर का फासला इसलिए है क्योंकि फंगस अंदर ही अंदर आगे तक जा चुकी होती है। और चौथा नुक्ता, काटे गए इन हिस्सों को बाग से बाहर निकालकर फौरन जला देना है, जमीन पर बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना वो जर्रात वहीं से दोबारा फैल जाएंगे। लेकिन एक खतरा और भी तो है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है टूल स्टेरिलाइजेशन, यानी औजारों की सफाई। ये औजार कैसे बीमारी फैलाते हैं? ये एक बहुत बड़ा खामोश खतरा है। पहला नुक्ता, औजार खुद बीमारी फैलाने का जरिया बनते हैं। आप एक बीमार शाख काटेंगे, जरासीम कैंची पर लग जाएंगे, और फिर उसी कैंची से सेहतमंद दरख्त काटेंगे तो इन्फेक्शन सीधा रगों में। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा नुक्ता है कि हर एक कटाई के बाद औजार की सफाई लाजमी है, हर कटाई के बाद।
तो इस सफाई के लिए इस्तेमाल क्या करना है? तीसरा नुक्ता, सोडियम हाइपोक्लोराइड के महलूल का इस्तेमाल करना है जो आम ब्लीच के तौर पर भी मिल जाता है। और चौथा नुक्ता, इस छोटे से अमल से आप पूरे बाग में बीमारी के फैलाव यानी क्रॉस कंटामिनेशन की रोकथाम कर सकते हैं। ये तो बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी कदम है। अच्छा, कटाई तो हो गई, लेकिन पौधे के अंदर जो वो हैकर बैठा है, वो करप्ट सॉफ्टवेयर, उसका क्या इलाज है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है टेक्निकल इंटरवेंशन 2 यानी दूसरा साइंसी कदम। जी, जिस्मानी कटाई के बाद अंदरूनी इलाज की बारी आती है। पहला नुक्ता यही है कि जिस्मानी और अंदरूनी इलाज दोनों साथ चलेंगे। तो अंदरूनी इलाज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दूसरा नुक्ता है मसनूई हार्मोन का इस्तेमाल। क्योंकि फंगस ने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया था ना, इसलिए हमें उसे बाहर से देना होगा। ताकि तीसरे नुक्ते के मुताबिक हार्मोन्स के बिगाड़ की दुरुस्ती की जा सके। जी बिल्कुल। और चौथा नुक्ता उस केमिकल का नाम है, इसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कहते हैं, यानी NaA। ये वो मसनूई हार्मोन है जो पौधे को दोबारा रीसेट करेगा। लेकिन केमिकल्स में तो मिकदार और वक्त ही सब कुछ होता है ना, जरा सी गलती से सब बर्बाद हो सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है NaA डोजेज एंड टाइमिंग, यानी दवा की मिकदार और वक्त। इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है? ये इस पूरे इलाज का सबसे हसास हिस्सा है। पहला नुक्ता, इसे फूल आने से पहले के अहम मरहले में इस्तेमाल करना है। और मिकदार कितनी होनी चाहिए? दूसरा नुक्ता, महलूल की तैयारी की दुरुस्त मिकदार 200 ppm यानी 200 ppm है। इसमें बिल्कुल कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। 200 ppm। और महीना कौन सा बेहतर है? तीसरा नुक्ता, अक्टूबर और नवंबर का महीना। इस वक्त की अहमियत पर बहुत जोर देना है क्योंकि इस वक्त पौधा सर्दियों में जा रहा होता है। और चौथा नुक्ता, इसे पत्तों पर ब्रायरा स्प्रे करना है जिसे प्रिसिजन फोलिया स्प्रे कहते हैं, ताकि पौधा इसे फौरन जज्ब कर ले। अच्छा, तो कटाई भी हो गई और अक्टूबर नवंबर में दुरुस्त स्प्रे भी हो गया, तो इस सारी मेहनत का फल कैसा होता है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फ्लोरल रेस्टोरेशन, यानी फूलों की बहाली। ये वो मरहला है जो आपको खुशखबरी देता है। पहला नुक्ता, NaA के इस्तेमाल से हार्मोन्स का तवाजुन बिल्कुल बहाल हो जाता है। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर हैक हुआ था वो रिकवर हो जाता है? बिल्कुल। और दूसरा नुक्ता, बाहर आने पर गुच्छों की बजाय सेहतमंद और लंबे फूल निकलते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। जी। और तीसरा नुक्ता ये है कि साइंसी तौर पर अब पौधे में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मिकदार बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है, जिसका चौथा और हतमी नतीजा ये है कि बाहर के मौसम में हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदावार का हुसूल मुमकिन हो जाता है। यानी हमने दुश्मन को हरा दिया। लेकिन बाहर के आगाज में क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए या बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए मजीद कुछ करना है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फाइटोसेंट्री विजिलेंस यानी हिफाजती निगरानी और स्प्रे। बागबानी में बेफिक्र तो कभी नहीं होना चाहिए। पहला नुक्ता, दरख्त की छतरी यानी कैनोपी में हवा का बेहतर गुजर यकीनी बनाएं ताकि नमी कम रहे और फंगस न फैले। और क्या करें? दूसरा नुक्ता, फूल निकलने के इब्तिदाई मरहले पर हिफाजती स्प्रे लाजमी करें। और तीसरे नुक्ते के मुताबिक दरख्त के हर हिस्से तक धूप की मुनासिब रसाई होनी चाहिए। धूप खुद एक फंगस कश है। और स्प्रे कौन सा करना चाहिए इस वक्त? चौथा नुक्ता, इस वक्त कार्बनडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का टारगेटेड इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी बैरूनी हमला नाकाम बनाया जा सके। ये तमाम साइंसी हकायक वाकई बहुत जबरदस्त है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन या इख्तिताम। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकाले ना, तो ये बात साफ है कि आलमी मेयार पर पूरा उतरना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि हमारी माशी बका की जरूरत बन चुका है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पुराने तरीकों और सिर्फ केमिकल्स पर अंधा इन्हिसार हमें डुबो देगा। दुरुस्त वक्त पर साइंसी कटाई, औजारों की सफाई और अंदरूनी हार्मोनल तवाजुन ही वो रास्ता है जो हमें उन हाई वैल्यू मार्केट्स तक ले जा सकता है जहां मेयार पर जीरो टॉलरेंस है। अगर हम आज इस वक्त इन जदीद आलमी मेयारात और साइंसी तरीकों को नहीं अपनाते, तो क्या हमारा बेहतरीन और लजीज तरीन आम सिर्फ मुकामी मंडियों तक महदूद होकर अपनी असल आलमी पहचान और कीमत हमेशा के लिए खो देगा? Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 349 9841 886. For specialized orchard consultancy, WhatsApp +92 349 9841 886. Subscribe to JQ Global Agriculture.